اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ اقتدار میں ہوں تو آپ بڑکے مارتے ہیں، اقتدار سے اتر جائیں تو آپ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں. اور نواز شریف کا پاسپورٹ 16 فروری کو منسوخ ہو چکا ہے. ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں. نمبر 1 وہ اپنی اپیل کر لیں، نمبر 2 کہ وہ اسائلم لیں وہاں، جو کہ شاید وہ نہ لیں. اور شہباز شریف صاحب نے ECL سے نکالنے کے لیے درخواست نہیں دی. نواز شریف کے پاس 2 آپشن ہیں، اپیل کریں یا سیاسی پناہ لیں. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں لیڈر وہی ہے جو ملک میں جیتا اور مرتا ہے. نواز شریف اب واپس آ جائیں، باہر کی کوئی زندگی نہیں. ان کا پاسپورٹ منسوخ ہو چکا ہے. موجودہ حالات متحد ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں. اپوزیشن خطے کی صورتحال سمجھ نہیں رہی. یہ بھی کہا ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت اور اسرائیل ملوث ہے. سی پیک میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے. افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے پر تمام ریکارڈ افغان وفد کو دے دیا. دوسروں کی ناکامی کا ملبہ ہم پر نہ ڈالا جائے، افغان حکومت بلیم گیم سے باز رہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی وارننگ، افغان قیادت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا. کہا ہم افغانستان میں امن کے گارنٹر نہیں ہیں، صرف معاونت کر رہے ہیں. مسئلے کا واحد حل مذاکرات ہیں. افغانستان میں پائیدار امن کے خواہ ہیں. بھارت نے اچھے رویے کا مظاہرہ نہیں کیا. سلامتی کونسل میں پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے. بار بار کہہ چکے افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں. افسوس ہے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی کہا داسو واقعے کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں. چینی حکام کو آگاہ کر دیا، جلد تفصیلات جاری کریں گے. پنجاب کے 4 اضلاع میں نئی کرونا پابندیاں نافذ. انڈور شادیوں پر مکمل پابندی. آؤٹ ڈور تقریب میں 300 افراد شریک ہو سکیں گے. رات 10 بجے تک جاری رہے گی. لاہور، راولپنڈی، ملتان اور فیصل آباد میں آج سے 31 اگست تک انڈور تقریبات بند رہیں گی. کراچی میں شرح انتہائی بلند، پابندیاں پھر بھی کم. شہر میں کورونا کی شرح 31% سے اوپر. دکانیں اور بازار کھل گئے. پبلک ٹرانسپورٹ بھی رواں دواں رہی. دکانیں رات 8 بجے تک کھولنے کی اجازت. جمعے اور اتوار کی چھٹی ہوگی. انڈور ڈائننگ پر پابندی برقرار. مزارات مکمل بند. تعلیمی اداروں میں 19 اگست تک چھٹیاں ہوں گی. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ویکسین لگانے سے بہتری آئی. ویکسینیشن سینٹرز میں پیسے لینے کی فوری اطلاع دی جائے، ایکشن ہوگا. ویکسین لگے گی تو ریلوے کی ٹکٹ کٹے گی. 1 اکتوبر سے صرف ویکسینیٹڈ افراد ہی ریلوے پر سفر کر سکیں گے. NCOC کا ایک اور بڑا فیصلہ. راولپنڈی اور پشاور میں بڑھتے کورونا کیسز پر گہری تشویش. NCOC نے سوشل میڈیا پر ویکسین کے حوالے سے معلومات کو گمراہ کن قرار دے دیا. ملک میں چوتھی لہر کے وار پہلے سے تیز. مزید 53 اموات، 4040 نئے کیسز رپورٹ. سابق میئر کراچی وسیم اختر بھی کورونا میں مبتلا. راولپنڈی ٹریفک پولیس کو ماسک نہ پہننے والے ڈرائیورز کو جرمانہ کرنے کی ہدایت. USAID کی جانب سے 10 لاکھ ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس پاکستان کے حوالے. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ لاہور، اہم ملاقاتیں، اجلاسوں کی صدارت. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی صوبے کی مجموعی صورتحال اور منصوبوں پر بریفنگ. گورنر چودھری سرور بھی عمران خان سے ملے. اعجاز چودھری اور میاں اسلم اقبال کی بھی وزیر اعظم سے ملاقاتیں. عمران خان نے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سازگار اقدامات کی منظوری دے دی. حکم دیا غیر ملکی سرمایہ کاروں کی مکمل حوصلہ افزائی کی جائے. عوامی ریلیف سے جڑے تمام محکمے فعال کردار ادا کریں. عوامی ریلیف سے منسلک وزارتوں کی کارکردگی میں مزید بہتری لانے کا فیصلہ. وزیر اعظم کی صدارت پنجاب آب پاک اتھارٹی کا اجلاس. وزیر اعظم کل کراچی جائیں گے. وفاقی کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس ملتوی کر دیا گیا. ہر فرد لگائے ایک درخت. پاکستان پھر سے بنے گا سرسبز و شاداب. وزیر اعظم نے لاہور میں سگیاں کے مقام پر میاواکی فارسٹ کا افتتاح کر دیا. بریفنگ میں بتایا گیا شہر کے 53 مقامات پر میاواکی جنگلات لگائے جا چکے ہیں. عمران خان نے کہا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے درجہ حرارت میں بہت اضافہ ہوا. لاہور باغوں کا شہر ہوا کرتا تھا. آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ملک چھوڑ کر جائیں گے. ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے گئے. 2013 سے 18 تک کے پی میں 1 ارب درخت لگائے گئے. ہر نوجوان ایک درخت لگائے.
पंजाब की 12 करोड़ आबादी को पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब की वजीर आज़म के दौरा लाहौर पर ब्रीफिंग। कहा पंजाब के 36 अजला में पीने के साफ पानी के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ दौर में एक फिल्टर प्लांट पर 6.5 करोड़ खर्च हुए। मौजूदा दौर में एक फिल्टर प्लांट पर 30 लाख लगाए जा रहे हैं। क्योंकि हलफ की तकरीब हो गई है, अभी हम लोग पहुँचे हैं क्योंकि मैं लेट पहुँची हूँ, तो तकरीब और कोरम ख़त्म हो गया है। जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है, बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता है। फिरदौस आशिक अवान के लिए ऐवान के दरवाजे बंद। सॉरी मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। मुआविन खुसूसी का ओहदा खत्म होते ही गार्ड ने गेट पर रोक लिया। फिरदौस आशिक अवान हैरान रह गई। कहा लिस्ट में नाम शामिल था, बाद में निकाला गया। हल्फबरदारी हो चुकी थी, शायद इसलिए अंदर नहीं जाने दिया गया। रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी के तंज बोली, बाजी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ओहदा छिन जाने के बाद घर और बाहर वालों ने आंखें बदल ली हैं। जालिमों ने गुलाबी जोड़े का भी ख्याल नहीं किया। वजीर आजम से मुलाकात के लिए फिरदौस आशिक अवान के जतन गवर्नर हाउस की इंतजार गाह में बैठी रहीं। वजीर आजम निकले तो हेलीकॉप्टर की तरफ चलते चलते मुलाकात की। मौकिफ सुना तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान की तरदीद। कहा वजीर आजम से बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। अवाम की उंगलियां सीधी बिजली के स्विच में देने की तैयारी। हुकूमत का बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का मंसूबा। चेयरमैन नेपरा भी खामोश न रहे। दौरान समात कहा अवाम की चीखें निकलेंगी, जोरदार झटका लगेगा। CPPA हुक्काम ने कहा वो सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं, सब्सिडी सिर्फ गरीब को देंगे। चेयरमैन नेपरा ने कहा जो भी फैसला करें सारिफ के मफाद को देखें। अवाम की चीखें तो दूसरे फेज में निकलेंगी। शक है आज फेज 1 मंजूर किया जाए तो कल फेज 2 आ जाएगा। हमने कौम को ज़हनी मरीज नहीं बनाना, बिजली बिल को सादा बनाना है। नेपरा में बिजली के स्लैब बदलने की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल, फैसला महफूज। हुकूमत के हर रास्ते में फेंके जाएंगे पत्थर। नून लीग ने कमर कस ली। PDM के सरबराही इजलास के लिए अपनी तजावीज़ तैयार कर ली। 11 अगस्त को इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। महंगाई और मुआशी आदाद-ओ-शुमार को इशू बनाया जाएगा। अवामी सतह पर हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों को सामने लाया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ जल्द से जुलूसों और रैलियां निकलेंगी। तमाम जमातों को अवाम को मुतहरिक करने का कहा जाएगा। इजलास में अपोजिशन जमातों को भरपूर किरदार अदा करने का कहा जाएगा। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में जारी। चांद नजर आने या ना आने का ऐलान चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। पर्ची नहीं टेक्नोलॉजी। आइंदा इंतखाबात वोटिंग मशीन पर कराने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। हुकूमत ने वोटिंग मशीन पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की सदर मुमलिकत को भी मशीन पर ब्रीफिंग अमली मुजाहरा दिखाया। बताया मशीन मौसर और काबिल एतमाद है। आरिफ अलवी बोले मशीन से इंतखाबात में धांधली का खात्मा होगा, अमल में शफाफियत आएगी, वोटर की राजदारी मुतासिर नहीं होगी। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय हो गया तो आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करा सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से मैकेनिज्म तैयार करना होगा। टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम काम मुकम्मल है। EVM के इस्तेमाल से इंतखाबी नताइज फौरी दस्तयाब होंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल के साथ पेपर ट्रेल भी दस्तयाब होगी। वज़ीर आज़म की मुस्तहिक़ ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन और मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर रिलीफ फराहम किया जाएगा। इमरान खान बोले फ्लैगशिप फलाही प्रोग्राम के जरिए कम आमदन वाले अफराद को सहूलत दी जाएगी।
इंतजामिया की सुस्ती, तलबा का मुस्तकबिल और जान दोनों दाव पर। सोहावा में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, बरसाती नाला बिखरने से दर्जनों तलबा इम्तिहान देने से महरूम रह गए। इम्तिहानी मरकज़ नदी पार बना, ज़ेर तामीर पुल होने के बायस तालिब इल्म लकड़ियाँ रख कर कोशिश करते रहे, फिर भी कामयाब ना हो सके, जान खतरे में भी डली रही। नवमुंतखब रुकन पंजाब असम्बली चौधरी एहसन सलीम बरियार की तकरीब हल्फ बर्दारी स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने हल्फ लिया। पंजाब असम्बली एक बार फिर कोरम पूरा ना कर सकी, कार्रवाई सिर्फ 13 मिनट ही चली। स्पीकर ने बगैर कार्रवाई इजलास 13 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। आजाद कश्मीर का अगला सदर कौन? चुनाव 17 अगस्त को होगा। कागजात नामजदगी 12 अगस्त को जमा करवाए जाएंगे। 16 अगस्त 11:30 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। 17 अगस्त को 10 बजे सुबह से 2 बजे तक पोलिंग होगी, जिसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। कश्मीर काउंसिल की 4 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी। पोलिंग 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से दिन 2 बजे तक असेंबली हॉल में होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, हल्फ भी उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पुरवकार तकरीब में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से हल्फ लिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट फराइज सरअंजाम दे रहे थे। ब्लाइंड क्रिकेट के बजट में इजाफा किया जाए, ब्लाइंड क्रिकेटर्स एहतजाज के लिए पहुंच गए। कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर पोस्टर उठाकर नारेबाजी। बोर्ड की तरफ से बजट में 5% इजाफे पर 3 घंटे बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। सबसे ऊंचा ये परचम हमारा रहे। यौम आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी, जगह जगह स्टॉल सज गए, घरों पर भी कौमी परचम बुलंद हो गए। इस्लामाबाद में साइकिल रैली। नवाज शरीफ के पास 2 ऑप्शन हैं, अपील करें या सियासी पनाह लें। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख हो चुका है, वो अब वापस आ जाएं। बाहर की कोई जिंदगी नहीं, लीडर वही है जो मुल्क में जीता और मरता है। इस मुल्क की बदनसीबी है कि इख्तदार में हो तो आप बड़के मारते हैं, इख्तदार से उतर जाएं तो आप मुल्क से भागना चाहते हैं। और नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को मनसूख हो चुका है। उनके पास 2 ही ऑप्शन है। नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 कि वो साइलम लें वहाँ, जो कि शायद वो ना लें। और शहबाज शरीफ साहब ने ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त नहीं दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। मुल्क की जेल भी सियासतदान के लिए, अगर उस पर जेल आ जाती है, उसको जेल आना जाना पड़ता है, तो क़यामत नहीं आ जाती। हम झूठे केसों में 7-7 साल कैद हुए। और एक साहब ने बयान दिया अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया तो क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की थी। उससे बड़े लीडर तो नहीं है आपके यहाँ, आप क़यामत बर्पा कर देंगे। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। वजारत दाखिला ऑफिस में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन से एक अपील भी की। बदनसीबी है इस मुल्क की कि अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क के अंदर इंटरनेशनल इस रीजन में क्या हालात आइंदा 6 महीनों में पेश होने जा रहे हैं। और कोरोना भी है, जो लाल हवेली में 13 अगस्त का जलसा और आतिशबाजी दोनों को मनसूख करने का ऐलान करता हूँ। शेख रशीद अहमद ने वाज़ेह किया सीपैक में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरों की नाकामी का मलबा हम पर ना डाला जाए, अहम खबर आपको दे रहे हैं। अफगान हुकूमत ब्लेम गेम से बाज रहे, ये कहना है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वार्निंग दी, कहा हम अफगानिस्तान में अमन के गारंटर नहीं, सिर्फ मुआवनत कर रहे हैं। Tasu incident, Pakistan has almost completed its investigation. We are in consultations with our Chinese friends.
Our role has been and will continue to be of a facilitator of the Afghan peace process and not of a guarantor. Instead of pointing fingers, if you have an issue, bring it up, let's discuss it and find a way out. We also urge the government of Afghanistan to refrain from the blame game. पंजाब के 4 अजला में नई कोरोना पाबंदियां नाफिज। इंडोर शादियों पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर तकरीब में 300 अफराद शरीक हो सकेंगे। पंजाब के 4 अजला में नई कोरोना पाबंदियां नाफिज। आउटडोर तकरीब में 300 अफराद शरीक हो सकेंगे, जबकि इंडोर शादियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पंजाब के 4 अजला लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में तरमीम शुदा लॉकडाउन का नफाज। कोरोना केसेस बढ़ने पर कुछ पाबंदियां आयद कर दी गईं। मुंतखब अजला में 31 अगस्त तक इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। आउटडोर शादी की तकरीबात में सिर्फ 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। तकरीब रात 10 बजे तक करने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मजहबी, सकाफती और दीगर तकरीबात इंडोर भी नहीं हो सकेंगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जारी तरमीमी नोटिफिकेशन का इत्तलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के इलाकों में होगा। लॉकडाउन की पॉलिसी बकाया तमाम सेक्टर्स पर 3 अगस्त के नोटिफिकेशन के मुताबिक नाफिजुल अमल रहेगी। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। वैक्सीन लगेगी तो रेलवे की टिकट कटेगी। 1 अक्टूबर से सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही रेलवे पर सफर कर सकेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, वैक्सीन लगेगी तो रेलवे टिकट कटेगी। आपको बताते चलें कि 1 अक्टूबर से सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही रेलवे पर सफर कर सकेंगे। एनसीओसी का बड़ा फैसला। एनसीओसी का रावलपिंडी और पेशावर में बढ़ते कोरोना केसेस पर गहरी तशवीश का इजहार। अहम खबर दे रहे हैं आपको, मुल्क में चौथी लहर से मजीद 53 अमवात जबकि 4040 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, एक रोज़ा दौरा लाहौर में गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से मुलाकातें की और सूबे के अमूर पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने अवामी रिलीफ के इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कन्वेंशन और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी जायज़ा लिया गया। इसी की तफसीलात बताएंगे मियां असलम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रोज़ा दौरा लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुलाकातें की। पंजाब के इंतज़ामी अमूर, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई। तरक्याती मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने पंजाब हुकूमत के इंतज़ामी ढांचे की बेहतरी के लिए इक़दामात से भी आगाह किया। वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार इक़दामात और फेडमिक और पैडमिक के बोर्ड्स की असर नौ तश्कील की भी मंजूरी दी और कहा गैर मुल्की सरमायाकारों की मुकम्मल हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब आब पाक अथॉरिटी का इजलास हुआ। इमरान खान ने पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के 36 अजला में 12 अरब रुपए की लागत से पानी के प्लांट लगाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने 116 पानी के प्लांट्स लगाए थे। फी प्लांट की जो कीमत है वो 6.5 करोड़ रुपए के हिसाब से आती है, जबकि यहाँ पर 4 अरब रुपए में औसतन जो है वो 30 लाख यानी 3 मिलियन रुपीस जो है वो एक पानी के प्लांट के ऊपर जो है वो खर्चा आ रहा है। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत, सेनेट में पार्लिमानी लीडर एजाज चौधरी और डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने भी अलग अलग मुलाकातें की। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची जाएंगे। वफाकी काबीना का हफ्तावार इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची जाएंगे। वफाकी काबीना का हफ्तावार इजलास मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची जाएंगे। पंजाब की 12 करोड़ आबादी को पीने का साफ पानी मुहैया किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब की वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर पर ब्रीफिंग। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ दौर में एक फिल्टर प्लांट पर 6.5 करोड़ खर्च हुए। मौजूदा दौर में एक फिल्टर प्लांट पर 30 लाख लगाए जा रहे हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से वाज़ेह डायरेक्शन दी हैं कि ना सिर्फ जो पंजाब की 12 करोड़ के करीब जो आबादी है उसको साफ़ पानी फराहम किया जाएगा, बल्कि आबे पाक अथॉरिटी की तर्ज के ऊपर साफ़ पानी की फराहमी के लिए अथॉरिटीज़ बनाई जाएंगी। दिसंबर 2021 तक 1500 पानी के जो प्लांट्स हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे पंजाब के 36 अजला के अंदर, और 2014 के अंदर बनने वाली साफ़ पानी कंपनी ने PMLN के जो दौरे हुकूमत था उस दौरान सिर्फ और सिर्फ जो है वो 116 पानी के प्लांट्स लगाए थे।